বহুদিন বাদে একটি বলিউড ছবির ট্রেলারই দেশ কাল গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে একটা শোরগোল ফেলে দিয়েছে। ট্রেলারটা রিলিজ হওয়ার পরই ভারতবর্ষ কেন, ভারতবর্ষের বাইরেও বেশ কটি দেশ এই ছবিটি নিয়ে সমালোচনা। ডিরেক্টর যে উদ্দেশ্য নিয়ে ছবিটি তৈরি করেছিলেন, হিন্দুত্ব ছবিটি তৈরি করেছিলেন, আমার মনে হয় ছবিটি রিলিজ হওয়ার আগেই ডিরেক্টরের সেই ভাবনা চিন্তা এবং তার যে মেসেজগুলো রয়েছে ছবিটিতে তা নিয়ে যে উৎসাহ ভারতবাসীর মধ্যে এবং ভারতের বাইরেও বিভিন্ন দেশে, তাতে এই মুহূর্তে ছবিটি রিলিজ হওয়ার আগেই তিনি অনেকটা সফল। কি আছে সিনেমাটা যার জন্য মানুষ এত উৎসাহ দেখাচ্ছে? ভারতবর্ষের বাইরেও বেশ কটি দেশ ছবিটিকে নিয়ে উৎসাহ দেখাচ্ছে, তর্ক করছে, বিতর্ক করছে। फिल्म में हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, भाषणबाजी के साथ साथ कुछ हिंदुत्व वाले गाने भी देखने को मिलेंगे। सीएए, एनआरसी और आर्टिकल 370 जैसे मुद्दे भी उठाए गए हैं। जब ये मुद्दे उठाए गए हैं तो हो सकता है कि कश्मीरी पंडित की कश्मीर से पलायन वाली कहानी भी ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে একটা ইতিহাস তৈরি করবে হিন্দুত্ব ছবিটি, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কি আছে ছবিতে? আমরা আজকে এই নিয়ে আলোচনা করব এসএন লাইভ চিলেকোঠার আড্ডায়। অত্যন্ত প্রিয় দুই বন্ধু, দুই সম্প্রদায়ের, তাদের বন্ধুত্ব অটুট। এই মধুর সম্পর্ক নিয়েই সিনেমাটা এগিয়ে চলতে থাকে। কিন্তু যেটা হয়, সব কিছু ভালোর মধ্যেই বা সব মধুর সম্পর্কের মধ্যেই কিছু সময় ঢুকে পড়ে বিষ বাষ্প, কিছু সময় তা ধর্মের রূপ নিয়ে ঢোকে, কিছু সময় তা রাজনৈতিক রূপ নিয়ে ঢোকে। এই দুই বন্ধুর মধ্যে রাজনীতি, বিশেষ করে ধর্মের জিগির তুলে স্বার্থান্বেষী কিছু মানুষ ধর্মকে বর্ম বানিয়ে এই দুটি সম্পর্কের মাঝে দাঁড়ার তৈরি করে। और दूसरी तरफ भारत को भी धर्म और अधर्म की लड़ाई वाली बात कहकर उसे धर्म के नाम पर लड़ने के लिए उकसाया जा रहा है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि समीर और भरत के बीच खतरनाक लड़ाई होगी। दोनों में से समीर की जीत होती है বা বিভেদ তৈরি করে, সম্পর্কটা আস্তে আস্তে ভাঙতে থাকে। শুধু ভাঙা নয়, এই সম্পর্ক ভাঙা পরস্পরের চিরশত্রু হয়ে পরস্পরের প্রতি ঘাত প্রতিঘাত। কি হয় তারপর? দুটি সম্প্রদায়ের দুই প্রিয় বন্ধুর সম্পর্ক কি শেষ পর্যন্ত টিকে? জানবো সে কথা। তার জন্য আমাদের দেখতে হবে হিন্দুত্ব সিনেমাটা। अब तक सुमनों पर चलते थे। ডিরেক্টর যেটা বলতে চেয়েছেন যে একজন হিন্দু হয়ে হিন্দুত্বের কথা বলা যাবে না, একজন হিন্দু হয়ে হিন্দুত্বের আচার ব্যবহার, রীতি রেওয়াজ এগুলো মানা যাবে না। এটা কেমন কথা? আমরা হিন্দু, যারা আমরা হিন্দু, তারা হিন্দুত্বের কথা বলবো না, তারা হিন্দুত্বের দাবি করবো না, তারা হিন্দু বলে গর্ব করতে পারবো না। जल कण बतलाता अपने दृढ़ निश्चय से पथ की बाधाओं को डहना सीखे। अब कांटों पर चलना सीखे। अब तक सुमनों पर चलते थे।
अपनी रक्षा आप करे जो, देता उसका साथ विधाता, अन्यों पर এখন আমরা তুলে ধরছি এই হিন্দুত্ব ছবির কাস্ট, ডিরেক্টর, এদের বিভিন্ন রকম অনুভূতি এবং ছবি তৈরির পিছনের কারণ। এই ছবির আর্টিস্টদের নিজের মুখ থেকেই আপনারা শুনে নিন এই ছবি সম্বন্ধে কিছু কথা। এসএন লাইভ চিলেকোঠার আড্ডায় সাথে আমি অভিকর্ষ আজকে এখানেই শেষ করছি। সামনের দিন আবার দেখা হবে অন্য কোনো নতুন বিষয় নিয়ে। नमस्कार। प्रोड्यूसर मौजूद हैं और डायरेक्टर मौजूद हैं, इनसे कुछ सवाल जवाब का सिलसिला हम यहाँ पर करेंगे, जानना चाहेंगे इनके फिल्म के बारे में। तो सबसे पहले हम इस फिल्म के प्रोड्यूसर करण राजदान जी से पहला सवाल करते हैं। और मेरा पहला सवाल करण जी आपसे है कि आप अपनी आंखों से कुछ दिखाना चाहते हैं हमारे दर्शक को, तो ऐसा क्या है जो आप अपनी आंखों से कहने के लिए आए हैं इस फिल्म को लिए? ये तो फिल्म देखकर ही जानेगी ऑडियंस कि मैं क्या कहने आया हूँ। अगर मैंने लफ्ज़ों में बयान कर देता तो फिर मुझे फिल्म बनाने की ज़रूरत न पड़ती। जानना चाहेंगे इनके किरदार के बारे में। पहले इन्होंने राम का किरदार किया, अब इन्होंने भगवा ओढ़ लिया है। क्या है, क्या किरदार है, इससे करना क्या चाहते हैं, क्या ऑडियंस को मैसेज देना? शास्त्री का जो किरदार का करण सर ने लिखा है हिंदुत्व के अंदर, उसका किसी चीज़ से कोई लेना देना, कोई संबंध नहीं है। हम सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहते हैं कि आज का जो हमारा सिनेरियो है उसके अंदर में जो हमारे देश की, जैसे हम कहते हैं कि मेजॉरिटी है हिंदू, वो हिंदू अगर स्वयं पर गर्व करके, स्वयं के धर्म पर गर्व करके ये बोलना चाहे कि मैं हिंदू हूँ, तो फिर प्रश्न क्यों उठता है? और अगर वो अपने धर्म की, अपने जीने के तरीके की, हिंदुत्व के बारे में वो किसी भी तरह से कोई भी बात करता है, और बात करने से मेरा तात्पर्य ये है कि वो किसी भी तरह से अपनी सोच को, अपने विचारों को प्रकट करता है, वो प्रैक्टिस भी करे भले ही अपने विचारों को, तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों उठा दिया जाता है? और हिंदू ही हिंदू पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि भाई तुम सेक्युलर नहीं हो, हिंदू तो सेक्युलर होते हैं। तो अगर मैं अपने धर्म को अपने तरीके से, अपनी सोच और अपने विचार और अपनी समझ के हिसाब से प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो मेरा धर्म, मेरा संविधान, मेरा देश मुझे उसकी इजाज़त देता है और मैं उस पर गर्व महसूस करता हूँ। बस इतनी सी बात। जी से सवाल कर लेते हैं। अंकित, जो किरदार आपका दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ वामपंथ आइडियोलॉजी की तरफ झुकाव है उसका, क्या कहना चाहेंगे, क्या विचारधारा है आपके किरदार? समीर सिद्दीकी का जो कैरेक्टर है वो बेसिकली एक कॉम, यानी मैं समझ रहा हूँ आपका क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। मैं एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कॉम का पूरा बोझ मैं अपने कंधे पे लेके चल रहा हूँ, तो टॉपिक बहुत सेंसिटिव हो जाता है। पर कहीं भी अगर हम वामपंथी की बात भी करें तो इंक्लिनेशन है ज़रूर, पर अगर मैं वो ये कि हम पूरा मूवी का वो नहीं बता सकते, क्योंकि जो हमारा मूवी का क्लाइमैक्स है वो बहुत ही एक अच्छे मैसेज के साथ एंड होता है। तो उसमें जो आइडियोलॉजीज़ है वो कैसे यूनिवर्सिटी में आके चेंज होती है, बचपन में ऐसी नहीं रहती जैसा वो था, जैसे हम जो दिवाली और ईद साथ में बनाते थे दोनों, आगे जाके कैसे इनकी आइडियोलॉजीज़ पॉलिटिक्स के कारण चेंज हो जाती है, उसके ऊपर मूवी है। दो दोस्तों के ऊपर मूवी है और प्यार के ऊपर। आशीष ने एक इंटरव्यू में बोला कि वो जो करण राजदान है वो एक नैरेटिव बना हुआ है जिसको तोड़ना चाह रहे हैं। ऐसा कौन सा नैरेटिव है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? हिंदू को हिंदू के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जाती है, भले ही वो सेक्युलरिज्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राजनीतिक तरीक़ों से ये कहा जाए कि हिंदुत्व जो है वो एक एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन है, सैफरन टेरर बीच में चलाया गया, उसको मलाइन किया गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, उसमें आपको योजनाबद्ध तरीके से जो चीज़ें होती हैं ना, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, कि जब पैलेस्टीन में कुछ होता है तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे हमारे कॉलीग्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एक्टर्स हैं, कलाकार हैं, समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं, वो सब एक योजनाबद्ध तरीके से हैशटैग चलाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, स्लोगन्स रेज करते हैं। लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लंदन में, यूके में, लेस्टर में, बर्मिंघम में योजनाबद्ध तरीके से हिंदू टेम्पल्स के ऊपर मॉब्स आ रहे हैं, उन्हें वायलेंट थ्रेट्स दे रहे हैं। हमारे जो हिंदू भाई हैं वो मंदिरों के अंदर बंद हैं। और जब पुणे के अंदर अभी रिसेंटली एंटी इंडिया स्लोगन्स उठाए गए, हमने आंखों से देखी है वो सारी चीज़ें, झूठ नहीं है वो कुछ।
वो सब कुछ सच है, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा है, एक भी आवाज़ नहीं उठती, सब चुप हैं। वो सारे लोग जो इस बात को अपना अधिकार और जिम्मेदारी समझते हैं कि कोई भी पब्लिक इशू हो उसके ऊपर उनको आवाज़ उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए, पर फिर सेलेक्टिव आउटरीच नहीं होना चाहिए। फिर आप सबके लिए समान तरीके से आवाज़ उठाएं। जब आप सेलेक्टिव आउटरीच करते हैं तो फिर आप हिंदुत्व को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अब समझ में आ रहा है, और हम उसी नैरेटिव को काउंटर करने की